દિલ્હીના સીએમ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા આતિશી દ્વારા દિલ્હી ચૂંટણી 2025 માટે ક્રાઉડ ફંડિંગ કેમ્પેઇનની શરૂઆત કરવામાં આવી। દિલ્હી વિધાનસભા માટે પોતાની પુનરાવૃત્તિ સુરક્ષિત કરવા માટે દિલ્હી મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા આતિશીએ 2025ના દિલ્હી ચૂંટણી માટે ક્રાઉડ ફંડિંગ કેમ્પેઇન શરૂ કરી છે। આતિશી, જેમણે કાલકાજી વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં સેવા આપી છે, લોકોના સહયોગ અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા પર ભાર મૂક્યો છે। કેમ્પેઇનની શરૂઆત દરમિયાન આતિશીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનો પાર્ટી મોટા વેપારીઓ પાસેથી ચૂંટણી માટે નાણાં નથી લેતી। તેમણે કહ્યું કે લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીની ઈમાનદાર રાજનીતિને ટેકો આપવા માટે નાણાં દાન કર્યા છે। અમે મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી ચૂંટણી માટે પૈસા નથી લેતા। આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર સામાન્ય લોકો માટે કામ કરે છે। આતિશીનું આ ક્રાઉડ ફંડિંગ કેમ્પેઇન ₹40 લાખનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, જે તેમને ચૂંટણી માટેની જરૂરિયાત છે। લોકો જે રકમ ઈચ્છે તે દાન આપી શકે છે। આતિશીએ જણાવ્યું કે આ ક્રાઉડ ફંડિંગ પહેલ લોકોના વિશ્વાસ પર આધારિત છે અને તેમના માટે સીધું લોકતંત્રમાં ભાગ લેવા માટે એક અવસર છે। તેમણે કાલકાજીના લોકોને તેમજ દિલ્હીભરના લોકોને આ દાન આપવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે। આતિશીનો આ નિર્ણય મોટી કંપનીઓને ચૂંટણી ફંડ માટે સામેલ ન કરવાનું આમ આદમી પાર્ટીની સફાઈ અને પારદર્શિતા માટે પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે। આ પહેલ તેમના સમર્થકોએ ખૂબ સરાહ્યા છે, જેમણે આને રાજનીતિમાં પૈસાના પ્રભાવને તોડવાનો પ્રયાસ માન્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીની પારદર્શી ચૂંટણી ફંડિંગ દ્રષ્ટિ આમ આદમી પાર્ટી હંમેશા રાજકારણમાં પારદર્શિતા અને ઈમાનદારીના પ્રચારક રહી છે। આતિશીનું આ ક્રાઉડ ફંડિંગ કેમ્પેઇન આ સિદ્ધાંતનું પ્રતિબિંબ છે, જે નાગરિકોને તેમના ચૂંટણી મુસાફરીમાં સીધા ભાગીદાર બનવાનો અવસર આપે છે। આ અભિગમ રાજનીતિમાં વધુ લોકોની સંલગ્નતા પ્રોત્સાહિત કરે છે, ખાસ કરીને જેઓ પરંપરાગત દાનના રૂપોમાંથી વિમુક્ત રહેતા હોય છે। આ પહેલ 2025ના દિલ્હી ચૂંટણીની પૂર્વ સૂચના તરીકે છે, જ્યાં આમ આદમી પાર્ટી આગળના કાર્યકાળ માટે મજબૂત મંડેટ મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે। આતિશી, જેમણે કાલકાજી અને શહેરના વિકાસમાં નોંધપાત્ર કાર્ય કર્યું છે, તેમણે વિશ્વસનીયતા અને પારદર્શિતા માટે આ અભિગમ યોગ્ય સમર્થન મળશે તેવી આશા છે। આતિશીનું આ ક્રાઉડ ફંડિંગ અભિગમ રાજકીય ફંડિંગમાં એક નવો દૃષ્ટિકોણ દર્શાવે છે। નાના દાન પર આધાર રાખીને તેઓ મોટા કોર્પોરેટ દાનદાતાઓના પ્રભાવ સામે એક મજબૂત ઉભરેલા પ્રતિકાર પ્રગટ કરી રહી છે। આ અભિગમ ભવિષ્યમાં અન્ય રાજકીય નેતાઓને પણ ક્રાઉડ ફંડિંગને પરંપરાગત ચંદો વિકલ્પ તરીકે વિચારવાની પ્રેરણા આપી શકે છે। કે आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी को डोनेट किया, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के पैसे दिए। मुझे याद है जब 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे, तो दिल्ली में जब हम घर घर जाते थे, कोई हमें 10 रुपए देता था, 50 रुपए देता था, 100 रुपए देता था, 500 रुपए देता था, और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे, उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों, वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति इसीलिए संभव हो पाई है कि हम चुनाव लड़ने के लिए चंदा बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन दोस्तों से नहीं लेते हैं। आज हमारे देश के लोकतंत्र की, आज हमारे देश की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, उसके बाद सत्ता में आते हैं तो खुद तो अपने लिए पैसे भ्रष्टाचार के तरीके से कमाते ही हैं, पर उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा समय अपने इन उद्योगपति दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में जाता है। तो जिस पैसे से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया,
फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि आम लोग हमें चुनाव लड़वाते हैं। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए, तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता, हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता, तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता, तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए। पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का, पिछले एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि एक महीने में दरारें आ जाती। इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमने हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट, हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।